Good morning, everyone. So, today we are going to start with another topic called optical isomerism. So, dealing with the optical isomerism, phenomena of having same molecular formula but different behavior toward the plane polarized light is called optical isomerism. मतलब phenomena having the same molecular formula but different behavior toward the plane polarized light is called optical isomerism. So अब यहाँ पता होना चाहिए कि सबसे पहले important word है plane polarized light is called PPL. So plane polarized light का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी एक ordinary light हो, पहले भी एक बार आइडिया दिया था, तो कोई भी एक ordinary light है, this ordinary light is made to pass through a polarizer. Polarizer क्या होता है? निकोल प्रिज्म है, is a kind of polarizer. कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पॉलीमॉर्फ है. कैल्शियम कार्बोनेट का पॉलीमॉर्फ इज कॉल्ड कैल्साइट, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल है. दिस क्रिस्टल हैज अ वेरी यूनिक एबिलिटी एज इट डज नॉट अलाउ all the light component to pass through. It allows only one of the light component in a particular direction to pass through. As this light component which is coming out get polarized in a single plane या get aligned in a single plane, इसको बोलते हैं PPL, is called plane polarized light. So what is polarizer? Polarizer is that crystal through which when the light is passed, it allows only one of the light component in a particular direction to pass through. Therefore the light coming out of it is having a component which has been polarized in a single plane, is called plane polarized light. When this plane polarized light is made to pass through, यहाँ क्या फिलअप करते हैं? Solution of a optical active compound, then this light which is already coming like this, जो लाइट यहाँ से आ रही है, this light either tend to get rotated toward the right or get rotated toward the left. If it get rotated toward the right, is called dextrotation. If going to the left, is called levorotation. If the light plane polarized light get rotated toward the right, is called dextrorotation. Dextro means right, leo means left. So if the light get rotated toward the right, is called dextrorotatory, left, right, levorotatory. If alpha is the angle of rotation, angle of optical rotation, L is the length of the tube in decimeter, and C represent the concentration of solution in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो C represent the solution, concentration of the solution. Then specific optical rotation is given as so if L is the length of the tube in decimeter, right, decimeter, and C is the concentration of solution in gram per centimeter cube, and alpha is the angle of rotation, then value of the specific optical rotation
specific optical rotation. Specific optical rotation is given by a symbol क्या? Alpha. Lambda represent the wavelength of the light used. T represent the temperature at which experiment is done. So lambda represent the wavelength of the light which has been used. T is the temperature at which experiment is done, is called alpha divided by L into C. Right, this is given as alpha divided by L into C. तो specific optical rotation होती क्या? If L become equal to 1 decimeter and C become equal to 1 gram per centimeter cube, then value of alpha for a particular wavelength and particular temperature become equal to the alpha. What is this alpha? It's called angle of optical rotation. So बहुत सीधी सी बात है. What is specific optical rotation? Specific optical rotation is the angle of rotation. Angle of optical rotation when the length of the tube is taken to be 1 decimeter, and concentration is taken to be 1 gram per centimeter cube. In that case, angle of rotation observed is called specific optical rotation. Right? तो ये तो हमेशा डिफाइन होगी किसके लिए? 1 decimeter और 1 gram per centimeter cube के लिए. So concentration must be 1 gram per centimeter cube and length must be 1 decimeter. अब सीखने वाली बात क्या है? ये नोट कर लीजिए एक बार. On changing the value of L and C, अगर L और C को चेंज किया जाए तो क्या होगा? लेंथ चेंज कर दूं, C चेंज कर दूं, देन वैल्यू ऑफ द अल्फा चेंजेस. अल्फा चेंज होता है मतलब एंगल ऑफ रोटेशन चेंजेस, बट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिमेन सेम. अब ये सेम क्यों रहेगा? ये सेम इसलिए रहेगा बिकॉज इट हैज टू बी डिफाइंड फॉर, ये डिफाइन करना पड़ता है किसके लिए? इट हैज बीन ऑलरेडी डिफाइंड फॉर 1 decimeter and 1 gram per centimeter cube. अब आप L और C को चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये तो चेंज होना नहीं, बिकॉज दिस हैज टू बी डिफाइंड फॉर व्हाट? दिस हैज टू बी डिफाइंड फॉर 1 decimeter length and 1 gram per centimeter cube concentration. So if you change this L and C, the value of this will change correspondingly. ये वैल्यू उसी के साथ चेंज होगी लेकिन ये वैल्यू सेम रहेगी. Therefore this concept can be used to find percentage purity of the compound. Percentage purity of the compound, ये सब्सटेंस कैसे निकाल सकते हैं? हम बोलेंगे क्या? Observed optical rotation divided by specific optical rotation of that compound मल्टीप्लाई बाय 100. जैसे बोलते हैं किसी भी एक कंपाउंड को, प्योर कंपाउंड को 50 डिग्री डेक्स्ट्रोरेटरी होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 50 डिग्री डेक्स्ट्रोरेटरी होना चाहिए, बट ऑब्जर्व हुई 40. इसका मतलब क्या है? कंपाउंड इज नॉट प्योर. कंपाउंड प्योर नहीं है तो ऑब्जर्व कितना? 40 डिग्री होना कितना चाहिए? 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100, तो 40 by 50 into 100 बिकम 80%. दैट कंपाउंड विल बी 80% प्योर कंपाउंड. जैसे हमने पीछे समझाया था, कभी काइनेटिक्स पढ़ाते हुए तो एक वर्ड आया था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. अब रेट कांस्टेंट कब डिफाइन था? रेट कांस्टेंट वाज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन टू बी 1. अब रेट कांस्टेंट तो डिफाइन होता है कब? जब कंसंट्रेशन हैज बीन टेकन टू बी 1 मोलर ईच. जब कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर ईच ली हुई है तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता. इसी तरह एल और सी चेंज करने पर एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होता है, बट स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन हैज बीन डिफाइंड फॉर व्हाट? 1 decimeter length and 1 gram per centimeter cube क्या? Concentration. So it has to be defined for 1 gram per centimeter cube concentration, or length has to be 1 decimeter. So this is called your, the value of specific optical rotation will remain same.
so only angle will change. So percentage purity of compound, it can be given by observed optical radiation divided by specific optical radiation compound multiplied by 100. This is called how to find percentage purity of the compound through optical phenomena. फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, बोले हाउ वी विल बी एबल टू नो दैट द कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट. तो उसके बाद पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव. Next other video is called criteria for a compound to be optical active. For a compound to be optical active, only criteria is that the compound must be asymmetrical. Compound must be asymmetrical means compound should not possess any kind of symmetry. So for a compound to be optical active, the only criteria is the compound should be asymmetrical. In other words, should not possess any kind of symmetry. कंपाउंड में किसी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. कंपाउंड शुड नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. In other words, compound should not possess any kind of symmetry, or if the compound is asymmetrical, does not possess any symmetry, then the compound is non-superimposable on its mirror image. Non-superimposable on its mirror image. So then the compound is non-superimposable in its mirror image. अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अगर एक कंपाउंड सिमेट्रिकल तो ऑब्वियस बात अपनी मिरर इमेज पे कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा. तो कंडीशन को आप दो तरह से बोल सकते हैं. द ओनली क्राइटेरिया इज द कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिकल, और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए. सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या होती है वो टॉपिक के बाद समझाते हैं. तो इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. अब कोई एक कंपाउंड में कौन सी सिमेट्री हमें देखनी होगी, तो सबसे पहले पढ़ना होगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कई होती हैं. इट्स कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. दूसरा इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री. थर्ड इज कॉल्ड alternating axiosymmetry. Also called rotation reflection symmetry. It's called rotation reflection symmetry. So alternating axiosymmetry या फिर rotation reflection symmetry. So किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए वी विल स्टडी थ्री सिमेट्री: प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस, सीओएस और अल्टरनेटिंग सिमेट्री. अभी फिलहाल हम दो सिमेट्री फोकस करेंगे क्योंकि 11th या 12th लेवल पे ऐसा कोई कंपाउंड रेयर ही सामने आएगा जिसमें अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री होती है. तो इसका एग्जांपल लेटर ऑन लेंगे क्योंकि ये फिजूल में एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. तो फर्स्ट विल फोकस ऑन ओनली टू काइंड ऑफ सिमेट्रीज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो क्या समझाया गया? किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए द ओनली क्राइटेरिया इज द कंपाउंड शुड नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. इन अदर वर्ड्स, इफ द कंपाउंड इज asymmetrical, then it's definitely on non-superimposable in its mirror image.
So we will take one by one this point. One is called planosymmetry, centrosymmetry, and alternating axisymmetry. Note it down. So पहला आता है बेटा इज कॉल्ड planosymmetry. An imaginary plane which when passed through a compound if can divide the compound in two equal and similar half, then compound is said to have a planosymmetry. If an imaginary plane which when passed through a compound if can divide the compound into equal and similar half, though exactly equal or similar half बना दे, the compound is said to have planosymmetry. तो उस कंपाउंड में हम बोलेंगे कंपाउंड के पास क्या है, प्लेनोसिमेट्री. अब जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई देता है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं. यू नीड टू विजुअलाइज द कंपाउंड इन अ 3 डायमेंशन मैनर. जैसे गिविंग यू एग्जांपल एज इजी एज दिस. सबसे पहले एग्जांपल सामने ये आता, दिस इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड तो कहते क्वेश्चन आता है कि there's a tartaric acid as in planosymmetry. तो कहते can you pass any imaginary plane which can divide the compound into two equal halves, equal and similar half? स्टूडेंट बोलेगा यस, बोले यहाँ से काट दो. बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट इज नॉट विजुअलाइजिंग. ये तो 2 डायमेंशन प्रोजेक्शन है, ये इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है sp3. अब जैसे ये दिखाई देता है ऐसा तो ये है ही नहीं. तो ऐसे नहीं देख सकते बोले कि कंपाउंड में यू सेंटर से पास कर दिया बोले प्लेनोसिमेट्री है. नो, you cannot see this compound like this. But you need to see, you need to visualize it. 3 dimension में हमने समझाया. How you can see like this. Yes COH, yes COH, vertical वाले below. अब ये राइट साइड पे है, this is toward. अभी yeah, so we can draw like this. और अब इसको विजुअलाइज करेंगे किस तरह से कि बीच में हम प्लेन रखेंगे. कौन सा प्लेन इमेजिनरी पास करेंगे, यहां से पास करेंगे. पास एन इमेजिनरी प्लेन थ्रू दिस. अब यहां से एक इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं तो व्हाट वी कैन सी द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट एग्जैक्टली इक्वल और सिमिलर भी है. ये पार्ट एग्जैक्टली उस पार्ट को सुपर इम्पोज कर सकता है. मतलब ये पार्ट कट करके उसको रख दें तो एग्जैक्टली उसको सुपर इम्पोज कर जाएगा. राइट, इट कैन एग्जैक्टली सुपर इम्पोज दिस. व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. We can make you explain this like this. अब देखो, what is this? This kind of molecule it is. This kind of molecule में ये COH ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. तो ये COH, ये OH, ये H, ये. Just a minute. अब ये COH, ये OH, H और H. तो इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली यहां से देखेंगे तो यू आर एबल टू कट दिस कंपाउंड इन एग्जैक्टली दिस पार्ट. एग्जैक्टली दिस पोर्शन में कट करोगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली इक्वल भी और सिमिलर भी. सी लाइक दिस. तो एग्जैक्टली यू काट दे तो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली इस पोर्शन को कवर अप कर देगा, सुपर इम्पोज कर देगा. लग भी रहा है कि सुपर इम्पोज कर देगा. बट अगर इनमें से मैं एक भी चेंज कर दूं तो इफ आई चेंज द मॉलिक्यूल लाइक दिस. अब इसको एग्जैक्टली यहां से हाफ कट करते हैं तो इक्वल तो हैं
बट आर दे सिमिलर? सिमिलर नहीं है. सिमिलर नहीं है क्यों? जहाँ इधर ब्लू आपकी तरफ है, ब्लू इज पॉइंटिंग टुवर्ड यू, इधर येलो इज पॉइंटिंग टुवर्ड यू. तो ये पोर्शन कट करने में इक्वल तो है बट सिमिलर नहीं है. तो मॉलिक्यूल में इसमें तो एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस मॉलिक्यूल कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट इनमें से एक भी एक्सचेंज कर दूं तो मॉलिक्यूल विल नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. अंडरस्टैंडेबल? सो दिस इज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इट इज. फर्स्ट मॉलिक्यूल. So while studying the plane of symmetry, you must figure out that you need to visualize the compound in a 3 dimension, not in 2 dimension. So this molecule possesses a plane of symmetry tartaric acid. So this is optically. So this is not optically active. This compound is optically inactive. So again put the molecule like this. Second को example देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए. Second example है मेरे पास. दूसरा एग्जाम्पल कि सेंटर में ऑब्वियस बात है कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़े हुए टेट्राहेड्रल पोजीशन में है. डज दिस मॉलिक्यूल पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री? क्या इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री है? कैन यू कट दिस कंपाउंड टू 2 इक्वल हाफ्स? 2 इक्वल और सिमिलर हाफ में कट कर सकते हैं या नहीं कट कर? सो वेदर वी कैन कट दिस कंपाउंड टू 2 इक्वल एंड सिमिलर हाफ, यू नीड टू सी, वी नीड टू विजुअलाइज दिस. विजुअलाइज करने के लिए क्या है? अब ये so we're going to do it like this. So this is your CS3, ये CS3 CS3. अब इसमें क्या आता है ये समझिएगा. जो नॉर्मल लाइन से दिखाई देंगे इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पेपर. ये प्लेन ऑफ पेपर, ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये away from the observer. So कुछ प्लेन ऑफ पेपर है, कुछ प्लेन ऑफ पेपर से आगे की तरफ, एक प्लेन ऑफ पेपर से आगे की तरफ और एक उससे पीछे की तरफ. तो what you need to understand, ये CS3 is lying here, BR, CS3 and BR, this is your CS3, yellow is representing the BR. So it's lying in this plane में ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, दिस इज अवे. तो ये रेड वाला CS3, ये CS3, ये BR, तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली लाइक दिस जैसे सामने दिखाई देता है. Whether does this molecule contain a plane of symmetry? You can cut this compound into 2 equal halves. So बोलेगा यहाँ से तो नहीं कट रहा, इधर ब्लू आ जाएगा, इधर येलो आ जाएगा. बट यू कैन होल्ड दिस कंपाउंड लाइक दिस. ऐसे होल्ड कर ले, तो अगर ऐसे होल्ड कर ले तो यू आर एबल टू कट दिस कंपाउंड इन दिस प्लेन से. अब जहां से होल्ड किया हुआ इसी प्लेन से काटेंगे. विल कट दिस प्लेन to this half blue on this side, half blue, half yellow, this side half yellow, this is red on the right side, my right side, and is yellow on the left. So exactly you half कट जाएगा. So मॉलिक्यूल में क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से? कौन से वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री में रखेंगे? बोले ये और ये एक प्लेन में रख के काट दें, तो ये और ये के प्लेन में रख के काट दें तो कट जाएगा. क्योंकि टेट्राहेड्रल में से 4 में से 2 सेम प्लेन में होते हैं, आगे की तरफ एक पीछे की तरफ. अगर इसको आप प्लेन मानोगे तो ये एक आगे की तरफ हो जाएगा, एक पीछे की तरफ हो जाएगा. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है विद द प्लेन पासिंग थ्रू कौन सा ग्रुप? BR एंड OH ग्रुप. जो प्लेन पास कर रहा है BR OH ग्रुप से. तो मॉलिक्यूल में कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है. सो डज द मॉलिक्यूल कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस इट डज. So writing few example, you should be able to give the answer if you are able to understand this topic. Why does this molecule contain a plane of symmetry? So think about it and try to give the answer whether this molecule contains plane of symmetry. 2 compounds have been written in front of you. You have to tell whether this molecule contains plane of symmetry or not. Think about it.
Now we need to understand whether this molecule contain planar symmetry or not. सबसे पहले जरूरी है यू नीड टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? स्टूडेंट बोलेगा 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 मतलब प्लेनर, ये sp2 प्लेनर. आर्ग्यूमेंट हो जाए बोले कितने एटम एक प्लेन में, हाउ मेनी एटम इन द सेम प्लेन. सारे एटम एक प्लेन में. कौन से वाले एटम? ये कार्बन. कार्बन समझा रहे हैं, सारे एटम तो नहीं बोल सकते, बट जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, दोस कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. What we have taken by chance, we are having 4 different groups. We have arranged 4 different groups. This kind of molecule it is. So इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 मतलब जहाँ से मैंने होल्ड किया इट मेक्स ए ट्रायंगल, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनता है और ऊपर भी एक ट्रायंगल बनता है. सो मेकिंग 2 ट्रायंगल्स, वन दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और फिर इधर से इधर से 2 ट्रायंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड है. तो यू कैन से अंडरस्टैंड यहाँ पे ये ऊपर से अटैच होगा, नीचे अटैच तो पाई बॉन्ड बनेगा. अब इसमें क्या है? ये Br, ये Cl, ये CH3, ये C2H5. तो फर्स्ट एटम कौन है? CH3. CH3 विल बी कंसिडर्ड लाइक व्हाट? CH3 विल बी लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये ऐसा हो. अभी एक स्फेरिकल बॉल की तरह, जैसे यहाँ स्फेरिकल बॉल दिख रहा है, तो CH3 को आपको CH3 समझना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट इज. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब सारे एटम एक प्लेन में है, सारे एटम एक प्लेन में है, तो जब प्लेन ही बोल दिया तो उसमें एक सिमेट्री, जब सारे एक प्लेन में है तो उसमें सिमेट्री तो होगी. कौन सी होगी? जिस प्लेन में उसी प्लेन से काट देंगे. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है? बट मॉलिक्यूलर प्लेन से. मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब ये कटिंग थ्रू दिस कटिंग थ्रू दिस प्लेन. अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो ऑल थिंग्स आर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, बिकॉज पाई बॉन्ड जेड एक्सिस पे है, पार्शली ऊपर है पार्शली नीचे है, तो एक्जैक्टली कटेगा. तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी पार्शली ऊपर पार्शली नीचे रह जाएगा. तो ऑल दी एज द मॉलिक्यूल प्लेनर. सो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे? थ्रू द मॉलिक्यूलर प्लेन, सिग्मा मॉलिक्यूलर. तो जो सिग्मा मॉलिक्यूलर प्लेन है वहीं से कटेगा. तो अगर एलिमेंट, अगर इस कंपाउंड में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन जहां पढ़ रहे हैं sp2 हो गए, दैट बिकम ट्रायंगुलर. ट्रायंगुलर होते ही डेफिनेटली विल कैंसिल आउट. मॉलिक्यूल में हाफ पोर्शन ऊपर हो जाएगा, हाफ नीचे हो जाएगा. अब नेक्स्ट है बेंजीन. बेंजीन में सभी जानते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2, एवरी कार्बन sp2. सो मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर. प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पे? कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पे? थ्रू द मॉलिक्यूलर प्लेन. ये भी मॉलिक्यूलर प्लेन. सो इस तरह से चेक करना. फिफ्थ मॉलिक्यूल वी आर टेकिंग. whether this molecule contain plane of symmetry, और इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं. इससे पहले पढ़े ओनली 6. ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बिकॉज चारों के चारों ग्रुप ही अलग हो गए. अगर चारों ग्रुप अलग हो गए तो मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. सो चारों अलग ग्रुप के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन फॉर्म अनदर क्राइटेरिया. So this kind of molecule it is. अब ये इस तरह का मॉलिक्यूल, अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या है? चारों अलग ग्रुप है. When all the 4 group are different, this molecule is totally asymmetrical. You cannot have any plane through which
You can cut the compound to two equal half. You cannot cut through this, through this. Through any plane you cannot cut this compound to equal and similar half. So molecule is asymmetrical. अगर asymmetrical है तो molecule क्या है? Optically active. अब asymmetrical है तो optical active है. अगर optical active है तो दूसरे वर्ड में क्या पढ़ सकते हैं? ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा. अब मिरर इमेज कैसे बनाएंगे बेटा? अब मिरर इमेज बनाने के दो तरीके क्या है? समझेगा? या तो ये तरीका, दूसरा भी समझा, दोनों तरीके से. या फिर दूसरा तरीका क्या? वो तो डिपेंड करेगा मिरर की पोजीशन क्या रखता. समझेगा? इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल में ये आपका वन फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर हम मिरर सामने रखें, मिरर रखने के दो तरीके. इफ यू गिव द मिरर लाइक दिस इन बिटवीन दिस टू कंपाउंड, तो सेकंड बनेगा इसका मिरर इमेज लाइक दिस. A mirror image will be like exactly this. Exactly इस तरह से. किस तरह? अब जो ग्रुप आपके लेफ्ट, जो आपके ग्रुप के, जो आपके लेफ्ट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे ये होगा. जो आपके लेफ्ट साइड पे मिरर रखने के बाद वो किधर आ जाएगा? राइट साइड पे आ जाएगा. और जो राइट साइड पे वो आपके किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. राइट? अगर मिरर रखोगे तो मिरर रखने पे क्या होगा? यहाँ मिरर रखेंगे तो क्या होगा? जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपको राइट हो जाएगा, और जो आपको राइट है वो आपको लेफ्ट हो जाएगा. ये वाले क्या रहेंगे? सेम प्लेन में, अगर मिरर यहाँ रखते. क्लियर बात है? और मिरर अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? सामने रखेंगे तो ये और ये सेम प्लेन में रहेंगे. तो जो आपके टुवार्ड है, वो आपसे अवे हो जाएगा, और जो आपके अवे है वो आपके टुवार्ड हो जाएगा. सो इस तरह से मिरर. अब इस तरह से रखने पे क्या होगा कि ये दोनों जो फॉर्म है आपस में सुपर इम्पोज नहीं करते. मतलब इफ यू कीप लाइक दिस विल नॉट सुपर इम्पोज. क्यों नहीं करेंगे? वो कहता है येलो वाले पोर्शन पे येलो आ जाएगा, रेड वाले पे रेड आ जाएगा. बट प्रॉब्लम है कि जहां व्हाइट है वहां ब्लू आएगा, जहां ब्लू है वहां व्हाइट आएगा. इसको आप कैसे भी रख लें, दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी. तो ये अपने मिरर इमेज पे क्या नहीं है? सुपर इम्पोज नहीं. लेकिन अगर मैं इनमें से कोई भी एक और सेम कर दूं, अब ब्लू वाला हटा के व्हाइट कर दूं, तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है. कहां से है? और यहां से कट करेंगे तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो डेफिनेटली मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज होगा. तो इसको कैसे भी होल्ड कर लूं, आई विल बी एबल टू सुपर इम्पोज. कैसे? इसको ऐसे करूंगा, I will be able to superimpose this. Just a minute, होल्ड करके दिखाता हूं आपको. ये एग्जैक्टली दूसरे सुपर इम्पोज है. तो ये मिरर इमेज पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज होने पे क्या होगा? जो व्हाइट वाला पोर्शन एग्जैक्टली व्हाइट पे आ जाएगा, व्हाइट वाला व्हाइट पे, रेड वाला रेड पे, और ब्लू येलो वाला येलो. तो यू कैन होल्ड लाइक दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोसिबिलिटी. तो सुपर इम्पोसिबिलिटी क्या है? कि अगर उसके पास चारों वाला ग्रुप है तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा. पर अगर दो ग्रुप सेम हो गए तो डेफिनेटली मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाएगा. क्लियर? तो इट कैन बी सुपर इम्पोज ऑन मिरर इमेज. अब ये इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? यू कैन इजिली सुपर इम्पोज इन मिरर इमेज. यू कैन उठा के ले. क्लियर? तो सुपर इम्पोज हो गया. तो इसको बोलते हैं, तो ये अपनी मिरर इमेज पे क्या है? नॉन सुपर इम्पोज. तो इसके मिरर इमेज बनाने के दो तरीके होंगे. एक तो ये, और ये अगर आपने सेम साइड पे रखा, अगर ये सेम साइड पे रखा है तो इसका मतलब
मिरर आपने कहाँ रखा है, बिल्कुल सामने, सामने रखा है तो बी आर जो आपका टुवार्ड था अवे हो जाएगा और जो अवे टुवार्ड हो जाएगा। लेकिन अब इनको चेंज नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे प्लेन कर सकते। तो जो आपके लेफ्ट पे है उसको आप राइट पे कर दो, जो हमारे लेफ्ट में उसको राइट में कर दिया, और जो टुवार्ड है उसको टुवार्ड ही रखेंगे, और जो अवे है उसको, तो जो आपके टुवार्ड है वो आपके टुवार्ड रहेगा, जो आपके अवे है वो अवे। ओनली दिस थिंग विल बी चेंज। सो आपकी मर्जी है, आप इनको चेंज करना चाहें इनको चेंज करिए, इनको चेंज करेंगे तो ये पोजीशन सेम रखनी होगी। और अगर आप इसकी साइड चेंज करेंगे, अगर साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइड चेंज करने पे अब इनको सेम रखें। सो इसको बोलते हैं हाउ टू ड्रॉ एसिमेट्रिकल कंपाउंड का एग्जांपल दिया। एसिमेट्रिकल, दिस कंपाउंड में क्या है, ये अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। आगे चल के कल समझाएंगे सच कंपाउंड आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड्स। तो जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तो कायरल कंपाउंड इसी को बोलते हैं कायरल कंपाउंड। तो जो एसिमेट्रिकल होगा उसको आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिक इलेक्ट्रिक कंपाउंड, या फिर बोलते हैं उसे कायरल कंपाउंड। तो एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं, कायरल कंपाउंड बोल सकते हैं, और इस तरह से अपने मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करने से पेयर ऑफ इनहेंशियोर बोल सकते। डिटेल में कल कराएंगे, अभी सिर्फ एक नाम लिखना सिखाया। तो जब एक कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करेगा उसे बोलते हैं पेयर ऑफ इनहेंशियोर। समझ में आया जी? तो अगर चारों अलग ग्रुप होंगे तो ऐसे कार्बन को बोल देंगे कायरल कार्बन, तो ये कायरल कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर बोल सकते हैं। कंपाउंड इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड, ये एसिमेट्रिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कंपाउंड कॉल्ड कायरल कंपाउंड। इस तरह से पेयर में एग्जिस्ट करना इस आइसोमर को बोलते हैं, आइसोमर इज कॉल्ड पेयर ऑफ एनहांसियोमर्स। ये एनहांसियोमर के पेयर बनाने का तरीका समझाया कि अगर आप बिल्कुल ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो जो CH3 और C2H5, अगर आपके C2H5 लेफ्ट पे आपने लेफ्ट पे ड्रा किया तो ऑब्वियस बात है मिरर कहाँ रखा है, मिरर फ्रंट पे रखा है। अगर फ्रंट पे रखा है तो क्या होगा, जो Br आपके टुवार्ड था वो आपके अवे हो जाएगा, जो Cl आपके टुवार्ड है वो अवे है, वो टुवार्ड हो जाएगा। और अगर इसको साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज मतलब यूं मिरर इस तरह मिरर रखते हैं, मिरर इस तरह रखा तो जो आपके लेफ्ट पे वो राइट पे हो जाएगा, बस लेफ्ट वाला राइट पे हो जाएगा, सिर्फ जो टुवार्ड है वो टुवार्ड रहेगा और जो अवे है वो अवे रहेगा। अब बात कर रहे थे इसकी, वेदर दिस कंपाउंड कंटेन एनी सिमेट्री और नॉट। अब इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री है या नहीं है वो कैसे देखेंगे। अब इस कंपाउंड में सिमेट्री देखने के लिए स्टूडेंट को पहली बार लगे बोले ये कार्बन ये और ये दो ग्रुप है। तो छोटा तरीका तो ये है, बोला इस पॉइंट से इसके अपोजिट एंड तक चलिए, अपोजिट एंड से इस साइड से चलेंगे तो इसको ग्रुप, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। अब देखने लगता है ये CH2 ये और ये सेम, ये तो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसके अपोजिट एंड तक जाते हुए लेफ्ट राइट वाला और लेफ्ट वाला एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, तो C इज कंसिडर टू बी इक्वल टू D। तो ऑब्वियस बात है ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। कैसा हो गया, तो हमने क्या कहा था, अगर दो सेम ग्रुप हो जाए तो उसमें क्या होती है, प्लेनोसिमेट्री। तो ये भी इसमें भी क्या होगी, प्लेनोसिमेट्री। तो ये सिर्फ ओपन का एक वर्जन हो गया। वर्जन क्या हो गया, ये और ये तो एग्जैक्टली सेम हो गए, तो C इज इक्वल टू D हो गया। तो ये और ये ग्रुप सेम, तो ये और ये ग्रुप सेम हो गए, तो ये और ये ग्रुप अलग है, ये और ये ग्रुप अलग है। तो साइक्लिंग में ऐसे देखना होगा, लेकिन एग्जाम में कल समझाया था, स्टूडेंट बोलेगा तो आप इसको 2 डायमेंशन में देखने लग गए। रियलिटी में साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक एग्जिस्ट लाइक वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाट यू नीड टू सी, अब आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या चाहिए, कल समझाया था। ये कार्बन क्या है 1 के बाद 2 और 6 क्या थे बॉटम, 3 और 5 क्या थे अप, ये 4। नीड टू आंसर लाइक दिस इज 1 से नीचे, 1 से नीचे, इधर 2 इधर 6, 1 से नीचे 2 और 6 के सामने 3 और 5 और ये 4। तो क्या होगा, एग्जैक्टली यहां से काटना शुरू करेंगे तो 1, 2 कटेगा इस साइड, 2 बॉटम पे 6 बॉटम पे,
तो ऊपर जाएंगे तो 3 अप पे, 5 अप पे और 4 सामने, तो 1 और 4 सीधे कट रहे हैं, तो 2 और 6 इधर आ रहे हैं, 3 और 4 ऊपर, 4 वाला सामने कट ही रहा है। मॉडल की हेल्प से समझाएंगे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब यू होल्ड करना है, अब यू होल्ड करना है, तो ये 1 के ऊपर कौन है, मिथाइल, तो ये रहा मिथाइल, मिथाइल एक क्लाउड की तरह है। इधर कौन है, एच, तो ये कौन क्या है, टेट्राहेड्रल, तो दिस योर टेट्राहेड्रल। अब 1 के बाद इधर ये कौन जा रहा है, 2, ये कौन जा रहा है, 2, 2 के बाद यहाँ कौन आएगा, 3, इधर कौन आएगा, 5, सामने कौन आएगा, 6। तो अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से काटेंगे तो ये जो रेड है आधा इधर, हाफ इधर जाएगा, हाफ इस साइड, येलो हाफ ऑन दिस साइड, हाफ ऑन दिस साइड, 2 विल बी लाई ऑन द 2 will be lying on the left side of you, इधर right side of you, 3 इधर अप, 5 इधर अप, 4 exactly सामने, तो सामने से यू कट जाए। So this molecule does not possess is not asymmetrical molecule, consists of planosymmetry. Planosymmetry कहाँ से, plane passing through CH3H and through the carbon, plane which is having carbon, CH3 and the H group, from that plane. सो उस प्लेन से काटेंगे तो मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेनोसिमेट्री। सो इस तरह से प्लेनोसिमेट्री देखने। जैसे ये, अब ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली उसके सामने, सो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, प्लेनोसिमेट्री। थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसको, अब यहां अगर एक ग्रुप लगा दिया, नाउ दिस इज योर ए ग्रुप, दिस इज योर बी ग्रुप, दिस इज योर सी ग्रुप, दिस इज योर डी ग्रुप। नाउ सी इज नॉट इक्वल टू डी, ए और बी तो डिफरेंट है ही, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक। तो यहां से हमने आपको आइडिया बता दिया हाउ टू सी सिमेट्रिकल। सो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, सम एग्जांपल विल बी गिवन इन योर असाइनमेंट, राइट। तो असाइनमेंट में दिए होंगे, देन यू नीड टू पिक वेदर द मॉलिक्यूल कंटेन प्लेनोसिमेट्री और नॉट। फिर आता है सेंट्रोसिमेट्री। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, थ्रू द सेंटर of the compound, from the center of the compound, moving in opposite direction, from the center of the compound moving in opposite direction up to equal distance, moving in opposite direction up to equal distance if similar kind of group is obtained। सेंटर से मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली, अगर इक्वल एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप इज ऑब्टेन, द मॉलिक्यूल पोजेस सेंट्रोसिमेट्री। पहला का एग्जांपल है सेंट्रोसिमेट्री होती है। Once again, moving from the center of the compound in opposite direction, if you are able to reach up to similar group, you can draw like this. So अगर आप exactly similar group तक पहुंच जाते हैं तो मॉलिक्यूल में क्या है, सेंट्रोसिमेट्री। थर्ड,
सो मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली पॉइंट चलते हुए if you are able to reach exactly similar compound in opposite direction, the molecule possesses centrosymmetry. So सारे molecule हैं. So what we guess, which compound is said to possess centrosymmetry if from the center of the compound on moving in opposite direction, if you are able to reach up to exactly similar group and you are able to divide this compound exactly into similar halves, the molecule possesses centrosymmetry. So this is called centrosymmetry. So a planosymmetry, centrosymmetry. थर्ड होता है अल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री, बट स्टार्टिंग लेवल पे आपको दो ही सिमेट्री इजीली समझ में आएंगे, तो विल फोकस ओनली ऑन टू, राइट. सो इफ यू आर एबल टू फिगर आउट वेदर द मॉलिक्यूल कंटेन प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री, तो मॉलिक्यूल में अगर इन दोनों में से कोई भी सिमेट्री फिलहाल के लिए हुई, थर्ड बाद में पढ़ेंगे, तो अगर सिमेट्री हुई तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा. तो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? शुड नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकल एक्टिव. क्लियर? तो यहाँ तक आप कंप्लीट रिवाइज करिएगा. Some example will be done in the live class also, so that you can figure out whether the molecule contain any kind of symmetry or not. Thank you.